Hi students, I welcome all of you in online classes. We are come back in class 8th. Continue our chapter 5th we learn. Dear students, in previous lesson we learn about the inexhaustible natural sources and exhaustible natural sources. These all are sources we learn about it, and we learn that coal and types of coal, stony coal, wooden coal, and other product they make from coal, as like coke, coal tar, and coal gas. All about we learn in previous class. In this class, dear students, we learn another petroleum. Petroleum is also a fossils fuel. Fossils means what do you mean by fossils? Fossils means many years ago some living organism burned in the sand and in sea and covered with sand and with high pressure and high temperature they makes a oil, and these types of oil we called it petroleum jivasma, fossils oil. Okay, and petroleum when you think that different types of little automobiles like car, motorcycle, in what types of fuel we use in these types of vehicle, we use petroleum, and other heavy vehicle like tractor, buses, and truck, in these all type of heavy vehicle we use diesel, and in other we kerosene, you all know about it, kerosene and other types of engine we use different types of oil like engine. Yeah. So dear students, all these products come from पेट्रोलियम. ये सभी प्रोडक्ट है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और पेट्रोलियम्स वर्ड कम फ्रॉम टू वर्ड, पेट्रो और ओलियम. पेट्रो मीन्स रॉक्स, पेट्रो मीन्स रॉक्स, और ओलियम मीन्स ऑयल. रॉक्स का ऑयल, चट्टानों का तेल. Why we called it petro means rocks oil? Because it is obtained from rocks, means it is fossils oil, means in land we found from land. Okay students, and petroleum find from dear students, we drill a well, हम एक कुआं खोदते हैं, and from drill we found out petroleum from the land. In world first time well drilled in USA. फर्स्ट टाइम है जो वेल खोदा गया था, कुआं खोदा गया था, वो यूएसए में खोदा गया था. 1859 के अंदर खोदा गया था. डियर स्टूडेंट्स, अब नाउ वी लर्न अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ द petroleum. How can we refining it? Petroleum is a dark, oily and liquid. It has a unpleasant odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricant oil, paraffin, wax. इन सब का पेट्रोलियम मिक्सर है, इन सब पेट्रोलियम के अंदर मिला हुआ है. और वी कैन सेपरेट दीज ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल विथ रिफाइनिंग. रिफाइनिंग से हम इसे अलग अलग करते हैं. द प्रोसेस ऑफ
The process of separating of various constituents fraction of petroleum is known as refining. It is carried out in petroleum रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी के द्वारा ये सभी जो प्रोडक्ट है वो अलग किए जाते। वेरियस कंटेंट्स ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग एज लाइक पेट्रोलियम गैस, ये लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होती है और ये फ्यूल के रूप में उपयोग में होती है फॉर होम एंड इंडस्ट्री। एंड सेकंड इज पेट्रोल, ये मोटर फ्यूल, aviation fuel and solvent of dry cleaning. In all these petroleum we can use. And kerosene fuel for stove, lamps और जेट एयरक्राफ्ट के अंदर भी केरोसिन यूज में आता है। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन सब के अंदर है वो डीजल यूज में लिया जाता है। लुब्रिकेंट्स ऑयल, लुब्रियंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज में लुब्रिकेंट्स ऑयल वी कैन यूज इट। एंड पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट के रूप में, कैंडल के रूप में, वैसलिन के रूप में हम पैराफिन वैक्स काम में लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज बिटुमिन पेंट्स के अंदर, रोड सरफेसिंग के अंदर ये काम में लेता है। तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये सभी पेट्रोलियम से मिलने वाले प्रोडक्ट होते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज नेचुरल गैसेज। नेचुरल गैस इज हेवी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। ये इजी टू ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको इजीली वी कैन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, थ्रू पाइप के द्वारा भी कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है। एंड वी कॉल्ड इट सीएनजी। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएसडी फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन के अंदर भी काम में लिया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल, इस फ्यूल के रूप में भी इसे काम में लेते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग, यह पोल्यूशन बहुत ही कम होता है। इट इज ए क्लीनर फ्यूल, ये क्लीनर फ्यूल के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। And the great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in home and factories के अंदर ये काम में ले जाता है। When you reach किचन के अंदर CNG सिलेंडर के रूप में जलाने के लिए, भोजन पकाने के लिए भी इसको उपयोग में लिया जाता है। Where it can be supplied through pipes such as a network of pipe lines exist in Vadodara, Gujarat, some part of Delhi and other places. Vadodara, Gujarat के in these cities supply CNG from pipelines. Pipeline से CNG को सप्लाई किया जाता है। Natural gas is also used in starting material for manufacturing of number of chemical and fertilizer के manufacturing में we can also use CNG gases. India has vast reserve for natural gas. इंडिया के अंदर बहुत सारी नेचुरल गैसेज हैं। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा के अंदर नेचुरल गैस अपने को मिला है, राजस्थान एंड महाराष्ट्र एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा। इन दीज फील्ड वी फाउंड नेचुरल गैसेज। Dear students, some natural resources are limited. All the natural resources we learn in lesson they all are limited. Limited means in future के अंदर they will be sorted, उनकी कमी हो जाएगी। So that why हमें क्या करना चाहिए? We have studied in beginning of the chapter that some natural sources are exhaustible like fossils, fuels, forest, minerals, but some are inexhaustible means they are cannot sort like sunlight कभी sort नहीं होगी। तो you know that coal and petroleum are fossils uses, it required that dead organism million of year to get converted into the fuels। million of year
बनने में लगती है, कन्वर्ट होने में लगते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फ्यूल मेकिंग में मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं। ऑन द अदर हैंड द नाउ रिजर्व ऑफ दीज will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels in a major causes of air pollution. But it's other reason for air pollution. They are used in also linked to a global warming. It is therefore necessary that we use these fuel only when absolutely necessary. हमें उनको तभी भी यूज में करना चाहिए जब हमें जरूरत हो, इनके लिए नेसेसरी हो। दिस विल बी रिजल्ट इन द बेटर इन्वायरमेंट। इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या बनेगा? बेटर बनेगा। एंड इसमें रिस्क ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? टेम्परेचर विद ड्यू टू सम पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एंड वेरी मच कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी इन आवर अर्थ। जब हमारे अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ इज बिकम हाई। टेम्परेचर हमारा अर्थ का क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इट मीन्स ऑल ग्लोबल टेम्परेचर हाई हो जाएगा। इट्स रीजन, इसका कारण क्या होगा? व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इट? इसका इफेक्ट क्या होगा? जब टेम्परेचर हाई होगा तो ऑल द ग्लेशियर है जिसके अंदर जो आइस है वो आइस से चेंज इनटू वाटर, वाटर में चेंज हो जाएगी। इट मीन्स लेवल ऑफ सी हाई हो जाएगा एंड अदर मैनी इफेक्ट पड़ता। इसके बारे में वी डिस्कस इन अदर क्लासेज। ओके स्टूडेंट्स, global warming and their availability for the longer period of time. In India, the Petroleum Conservation Research Association PCA एडवाइस, ये हमें एडवाइस देता है पीपल को। PCRA, PCRA मीन्स क्या होता है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। PCRA ये एक समिति है, संस्था है एंड कमेटी है एंड इट्स एडवाइज्ड पीपल, ये हमें एडवाइस देती है हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग दी ड्राइविंग। जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमें पेट्रोल और डीजल को सेव कैसे करना है। तो सम टिप्स आर हेयर, यहाँ पर कुछ टिप्स है वो दिए हुए हैं। तो आई डिस्कस अबाउट ऑल दीज टिप्स। इन टिप्स की मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपके सामने। ड्राइव एट द कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हमेशा हमें एक निश्चित स्पीड के अंदर है ड्राइव करनी चाहिए, न ही ज्यादा फास्ट ड्राइव है वो हमें नहीं करनी चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक, ट्रैफिक के अंदर जब भी गाड़ी आपको रुकती है इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। लाइट एट द पैलेस वेयर यू हैव टू वेट, जब आप वेट करते हो तो इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इंश्योर करेक्टली टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर भी पर्याप्त रूप में रहना चाहिए। व्हेन टायर प्रेशर इज पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो इट में भी ज्यादा है वो डीजल है वो उपयोग में लेंगे। एंड नेक्स्ट इज एंश्योर दैट रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का नियमित रूप से रख रखाव होना चाहिए। तो हमें ये कुछ टिप्स है वो हमें उपयोग में लेना चाहिए जिससे जो भी फ्यूल है पेट्रोलियम है इनका मिनिमम उपयोग होना चाहिए। क्योंकि पेट्रोलियम है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये ऑल आर प्रोडक्ट इज फॉसिल्स प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग फॉसिल्स प्रोडक्ट टेक मोर टाइम्स मिलियन ईयर्स टाइम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को ये जो प्रोडक्ट उपलब्ध रखाना है तो इसके लिए हमें इनको सोच समझ करके उपयोग में लेना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो जितनी जरूरत हो उतना ही उनको उपयोग में लेना चाहिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू, गुड बाय।